ब्रेक हो जाता है तो आई वंडर वेदर पीपल रिमेम्बर ऑल्सो। The हमने last परसों। practice was the walk thing, right? यस, वेरी गुड प्रशांत जी, आई एम सो हैप्पी। द मैजिकल Magic walk. फुटस्टेप्स। Mhm. बहुत इजी से मत लेना वो प्रैक्टिस। दैट प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज समथिंग, इफ यू विल व्हेन यू विल गो फर्दर इन दिस बुक ना, यू विल अंडरस्टैंड कि मैजिकल फुटस्टेप्स जो हम क्यों लेते हैं इज बिकॉज यू आर गोइंग टू reach to your destination through that. So you have to think, where is my destination, where is my dream? So I'm taking that footsteps towards it. एक skill सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ to go towards that. So let's join our hands first. Close our eyes. Let's call upon the universe. Thank you, universe. Sorry, just take a deep breath and relax. Take one more deep breath and say thank you. Take one more deep breath and say thank you. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for giving us this opportunity to come together and do the practices of gratitude. Thank you, universe, for a healthy body, which is healing day by day as I'm becoming happier and happier from inside. Thank you for making me these practices so that I do these practices and understand the joyful living I need to. Thank you for my lovely, lovely heart, which is beating every moment and taking me towards my dream. Thank you for the legs, which give me the strength to sit and do these practices. Thank you for the lovely back, the strong back which I have, which moved me towards my goal. Every day and every moment now, I'm moving towards gratitude, and with gratitude, the feeling of achieving everything and remaining in the good moments. Thank you for making me the channel of blessings so that I enlighten other people's life and further they enlighten others. Thank you. Thank you. Thank you. So today I hope you have got your heart shape cutouts. I'll be doing some creative activity so that my screen is visible. So Yes. we had done day before yesterday magic footsteps, right? And I hope you all have practiced. जिसने practices नहीं की है, please come into the practices. Only practices are going to take you further. And keep smiling. पहले तो अपने चेहरे पे smile लाओ जब भी आप बैठते हो सेशन में. See that you are happy. That happiness is going to take you towards your dreams. So today is day 20. We have reached to day 20, heart magic. Look at this picture. ये पिक्चर में दिखा रहे heart on the tree. Can you see a picture of a tree? Right? Now, who can tell me why there is a heart drawn here plus there is a tree? What relation is, what can you relate through this picture? Anyone? This is a heart, this is a tree, on that there is a heart and there is a tree. These are trees. We can see here tree, we can see here tree, and this is the bark of the tree fully, right? So what is the connection between heart and tree? Guess, guess.
what do the trees give us? Oxygen. Yes, Manju ma'am, oxygen. And what does the heart require? Oxygen. Oxygen. So that is the connection. See the scientific way of her relating this, the through the pictures also. Imagine how this book has been designed so well. So gratitude is the memory of heart. Jean Baptiste, Messier, French Revolution activists. Gratitude is the memory of the heart. इसका क्या मतलब होता है? Gratitude is the, what do you say? Gratitude is the, बता रहे आपको कि gratitude is the memory of the heart. आपको क्या लगता है? Memory means what? Memory तो हार्ट में होती है क्या? दिल से थैंक यू बोलना. Feel it and say thank you. Feel and say thank you. Very good. But memory होती है क्या हार्ट में? No. मेमोरी तो हम कहाँ बोलते हैं? यहाँ पे होती है, Brain. ब्रेन में, राइट? But here she's saying gratitude is the memory of the heart. What does that mean? आप कोई जगह पे जाते हो, आप एंजॉय करते हो, आप कोई ट्रिप पे गए हो, राइट? या आपने कोई शॉपिंग की, जब आपका दिल एकदम भर आता है उस चीज की, कितनी खुशी होती है, तो वो कहाँ होती है? दिल में होती है ना, राइट? वो फीलिंग दिल में आती है. एंड when you have gone to your trip and you have collected some memories, राइट? तो वो किधर बसती है? माइंड में बसती है कि दिल में बसती है? जब आप याद करते हो तो आपको दिल से क्या फीलिंग आती है? खुशी की फीलिंग आती है. दैट मीन्स हार्ट ऑल्सो हैज मेमोरीज, राइट? हार्ट में भी मेमोरी सेल्स है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को हार्ट डोनेट किया, किसी का हार्ट किसी को ट्रांसप्लांट हुआ, तो वो बंदे के अंदर, आपने अगर कोई मूवीज भी देखी होगी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द मूवी, वो बंदे को हर चीज वो बंदे की याद आती थी हमेशा, जिसका उसको हार्ट मिला हुआ था, राइट? तो होता है बिकॉज वो हार्ट के अंदर उसकी जो मेमोरीज थी, तो जब वो ट्रांसप्लांट हुआ दूसरे बंदे को, तो उसके अंदर उसको वही टाइप की फीलिंग, उसको वही चीज, क्योंकि वो मेमोरी सेल्स अभी भी उसके अंदर रहते हैं. सो दैट इज व्हाई इट्स सेइंग ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट. हार्ट आपको दिल से फीलिंग कराता है. हम कितनी बार ऐसा बोलते हैं ना, दिल से बोलो यार, तुम मुझे प्यार करते हो क्या? नहीं. हम बच्चों को भी बोलते हैं, लाइक सच में बोल यार, दिल से बोल, तू झूठ बोल रही है. तो हम बोलते हैं कि नहीं, ऐसे अपनी फ्रेंड्स को भी, या हस्बैंड्स को, या बच्चों को, कि तुम मुझे दिल से प्यार करते हो क्या? नहीं. दैट मीन्स दिल में हमारे प्यार बसता है, एंड दैट प्यार हम ग्रैटिट्यूड से भरते हैं. सो यू माइट हैव फिगर्ड आउट बाय नाउ that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. And this is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for the outside world increase too. I'm repeating this paragraph. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it is as much as you can. यानी gratitude का मतलब होता है feeling. इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड ऑफ थैंक यू. आपको जितना आप थैंक यू को फील करके करोगे, तो मेन ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि फीलिंग. और अभी हमने मैजिकल फुटस्टेप्स किया, मैजिकल टू डू लिस्ट किया, राइट? मैजिकल हेल्थ किया, रिलेशनशिप्स किया, उसमें से हमको समझ में आ रहा है कि राइट, ग्रेटिट्यूड इज ओनली अ फीलिंग. आप हर चीज के लिए जहां पे फीलिंग लेके आ जाओगे, वो चीज आप जल्दी पाओगे. सो दैट इज वाई इवन व्हेन वी डिड द चैप्टर 13, हमारे को ये बोला गया था कि आप विजुअलाइज करो, फील करो. आज हम उस नई एक प्रैक्टिस सीख रहे हैं कि हम हार्ट के द्वारा अपने ड्रीम्स को कैसे पूरा कर पाएंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट. So this is because when you increase the feeling of gratitude on the inside. Now inside कहाँ पे आता है? माइंड में आता है, ब्रेन में आता है, कि हार्ट में आता है?
हार्ट में, राइट? Heart and brain are the two important organs really, if you go to see. And the things you have to be grateful for in outside world increase too. तो अगर आप अंदर से वो फील करके gratitude करते हो, I will today share my yesterday's retreat experience also. So आप देखोगे कि कितना आपको हर चीज वो मिलनी शुरू हो जाती है. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. जब आप बहुत टाइम प्रैक्टिस करते हो ग्रैटिट्यूड, दैट इज व्हाई वी से प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितना आप लिखने की प्रैक्टिस, एक बार आप उसके धुरंधर बन जाओगे ना, फिर आप बाद में नहीं भी लिखो ना, आप ओरली भी कर लो ना, तो वो उसका इफेक्ट देखोगे. बट इनिशियली आपके जो पहले जो नेगेटिव सेल्स है, उनको रिप्लेस करने के लिए आपको पहले पॉजिटिव वाले सेल्स डालने हैं. दैट कम्स थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड गेटिंग दैट फीलिंग. So the things you have to be grateful in for the outside world increase eventually after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. फिर आपको वो फीलिंग खुद ही आ जाएगी हार्ट के अंदर. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. यानी जो लेवल आप पहुंचना चाहते हो आपको ड्रीम को लेके, आज की प्रैक्टिस वो आपको टाइम को कोलैप्स कर देगी, यानी टाइम को जल्दी कर देगी, आपको और आगे बढ़ा देगी आपके ड्रीम्स की तरफ, अगर आप दिल से करते हो तो. सो द हार्ट मैजिक प्रैक्टिस इज डिजाइंड टू पावरफुली इंक्रीज द डेप्थ्स दैट यू फील gratitude by focusing your mind on the area of the heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of my heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in the major improvements to your immune system and health. आप देखोगे कि जब आपको गुस्सा आता रहता है और अगर आप थैंक यू बोलना शुरू कर देते हो और आपके हार्ट पे अगर आप हाथ रखते हो, तो आप देखोगे एक अजीब टाइप की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है. सो जस्ट नाउ keep your hands, keep your first right hand on your heart, then keep your left hand on that. All of you do it just now and close your eyes for 2 seconds and just feel your heart. फील करो, क्योंकि हमने कभी आज तक अपने हार्ट की फीलिंग ही नहीं सुनी है. Just close your eyes and say thank you. Keep on just saying thank you. तो आप फील कर रहे हो कि आपके हार्ट के ऊपर आपने फोकस किया है और आप सिर्फ थैंक यू बोल रहे हो उसको. आप देखोगे कि आपके अंदर एक अलग टाइप की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी. बोलते रहो थैंक यू. हार्ट को फील करो. Keep your hand and feel if you're able to hear the heartbeat or feel the thumping of your heart. किसी किसी को तो वो भी सुनाई नहीं देता है. अपने हार्ट की आवाज सुनना शुरू करो. जब आप शांत हो जाते हो तब आपको वो फीलिंग आनी शुरू होती है. And just keep on saying thank you to your mind. जब माइंड में आप थैंक यू साथ में बोल रहे हो और फोकस आपका हार्ट के ऊपर है, you will start feeling relaxed. Thank you for my lovely heart. Thank you for the feelings in my heart. Thank you, मुझे रोज अच्छी फीलिंग्स आनी शुरू हो गई है. मैं अंदर से खुश होना शुरू हो गया हूँ या हो गई हूँ. मेरे अंदर एक ऊर्जा भरती जा रही है बिकॉज ऑफ माई हार्ट. ये हार्ट जो मेरे मेरे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पंप करता है.
जिसकी वजह से मैं आज जीवित हूँ, उस हार्ट के लिए शुक्रिया। Open your eyes. Open your eyes and see अभी कैसा फील हो रहा है जब हमने क्लास स्टार्ट किया और अभी की फीलिंग में। डिड यू फील लिटिल डिफरेंस? 1%, 2%? तो जब हम हार्ट पे हाथ रख के अपने हार्ट को थैंक यू बोलते हैं, और जब हम उसको फोकस पे जाते, बिकॉज वी नेवर नोटिस आवर ऑर्गन्स ओनली एनी टाइम, वी आर सो मच बिजी इन आवर लाइफ। कब बुक खत्म हो गई, कब ये लाइफ चलेगी, कब मेरी आगे का काम होगा, कब मैं ऑफिस जाऊंगी, कब। वी ऑल हैव ओनली दिस टाइप ऑफ फीलिंग्स, बट कभी हमने हमारे ऑर्गन्स को सुना ही नहीं। Nor we heard our brain, nor we heard our heart, nor we heard our legs, nor we heard our knees, कि अरे नीज दुख रही है, वो आपको इशारा दे रही है, but we never listen, right? So the heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research ने भी बताया that by focusing on your heart, you feel more grateful, and you feel the gratitude, and the rhythm of your heart immediately becomes much more even harmonious, resulting in the major improvements to your immune system and health. And that gives you an idea of the power of heart magic. आपने सुना होगा बहुत सारे हार्टफुलनेस मेडिटेशन करवाते हैं, राइट? बहुत सारे लोग हार्टफुलनेस मेडिटेशन करवाते हैं, वेयर विच आई हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन माई स्कूल, जहाँ पे वो आपको हार्ट पे पहले फोकस करने को लगाते हैं, एंड देन दे मेक यू रिलैक्स, एंड देन वी डू द ग्रेटिट्यूड. So it takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. जब आप हार्ट के ऊपर फोकस रख के, हार्ट से बात करके, अपने दिल से कभी बात की है क्या आपने? तो जब आप दिल से बात करोगे कि यार मेरी दिल से ये इच्छा है कि मैं ये ट्रैवल ट्रिप करूं, मेरी ये दिल की ये इच्छा है कि मेरा ये इस टाइप का घर बन जाए। जब आप इस तरीके से अपने दिल को कमांड करोगे, उसमें पहले प्यार भरोगे, उसके ऊपर फोकस लाओगे, और उसको बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि दिल दिल से आप कितनी बार भी आप ऐसा बोलते हो ना कि ये हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट कभी वो दिल से फील किया? वो देखो कि आपको वो फीलिंग आ रही है, क्योंकि फीलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? हम कितनी बार बोलते हैं ना, ही इज वेरी हार्टलेस, यार उसके अंदर तो दिल ही नहीं है, कैसे बात करता है मेरा बॉस, ही इज रियली हार्टलेस, ही इज वेरी रूड, कुछ भी बात करता है। कितनी बार हमारे मुंह से ऐसी बातें निकलते हैं, तो हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? ही इज हार्टलेस बोले तो क्या, कि उसके पास हार्ट ही नहीं है, क्योंकि हम ये चीज रिलेट कर रहे हैं कि उसके पास अच्छी फीलिंग ही नहीं है, राइट? कि किसी बंदे के लिए उसके पास अच्छी फीलिंग ही नहीं है। तो हम देखो हमारे रोज की जिंदगी में भी ऐसी बातें करते रहते हैं। सो इट टेक्स लिटिल प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम, बट आफ्टर फ्यू टाइम्स आप देखोगे बहुत आपको मजा आने लग जाएगा, जब आप दिल के ऊपर फोकस करके आपका ड्रीम बोलना शुरू कर दोगे। सो टू प्रैक्टिस हार्ट मैजिक, फोकस योर माइंड एंड योर अटेंशन ऑन द एरिया अराउंड द हार्ट, जैसे अभी हमने किया, जो हमने अभी एक्सरसाइज किया कि वी फोकस्ड ऑन द एरिया कीपिंग योर हैंड ऑन द हार्ट, एंड हमारा हमने फोकस हार्ट के ऊपर लेके गए, हमने पहले सुना उसकी हार्ट बीट को, ओके, एंड देन वी फोकस्ड ऑन इट, एंड देन वी बिकेम थैंकफुल. सो इट डजेंट मैटर इफ यू फोकस ऑन द इनसाइड और द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी. बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, राइट? तो भले आपने सिर्फ यहां पे भी बाहर हाथ रखा है, तो आपको वो फीलिंग आएगी. क्लोज योर आईज बिकॉज इट विल मेक इजियर वाइल कीपिंग योर माइंड फोकस्ड ऑन योर हार्ट. तो जब आप आईज बंद करके आपके हार्ट के ऊपर फोकस करते हो ना, तो तब आप देखोगे
कि आप मेंटली एंड यू से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, एंड आपके अंदर जो फीलिंग आती है तभी वो एक डिफरेंट फीलिंग होगी जो आप ऐसे अभी थैंक यू बोलते हो. So once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude जब आप आंखें बंद करके आपके हार्ट के ऊपर हाथ रखोगे ऐसे, और आप उसके ऊपर फोकस करोगे, पूरा फील करोगे कि ये मेरा हार्ट है यार, कितना अच्छा ऑर्गन है, मैं कितना ये हार्ट के द्वारा मैं सबको सबकी तरफ प्यार दे पाती हूँ, ये हार्ट के वजह से मैं इतना सबको प्यार ले पाती हूँ, ये हार्ट ही है जो मेरे अंदर सामने वाले के लिए फीलिंग लाता है, और ये हार्ट ही है जो मेरे अंदर मुझे रूड फीलिंग्स भी लेके आता है, ये हार्ट ही है जो मुझे ये बताता है कि ये बंदा अच्छा है क्या बुरा है. आपका दिल ही आपको बताता है ना. कितनी बार अगर आप देखोगे कि आप अगर कोई ऐसे सामने ऐसा बंदा आता है और आपको कोई नेगेटिव वाइब्स आती रहती है, तो आपको खुद ही समझ में आता है कि ये बंदा अच्छा है. तो वो कहाँ से फीलिंग आती है? आपका माइंड नहीं बोलता है, वो हार्ट बोलता है आपका. वो हार्ट आपको गाइड करता है तभी. और उसके लिए जब भी हम कोई फंक्शन में गए, हमने बहुत एंजॉय किया, हमने कोई शॉपिंग जब दिल से करते हैं ना शॉपिंग, तो वो मेमोरीज हमारे हार्ट में हमेशा रहती है. हम बोलते हैं माइंड में रहती है, नहीं हार्ट में रहती है. उसके लिए नेक्स्ट टाइम हम कोई ऐसी चीज देखते हैं ना, तो यार दिल से ऐसे फीलिंग आती है कि यार मुझे तो ये चीज चाहिए चाहिए. अरे यार, मुझे मुझे याद है यार, लास्ट टाइम मैंने यही दुकान से इतना अच्छा ड्रेस खरीदा था ना, कि मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे जब मैंने वो ड्रेस पहना था. वो फीलिंग कहाँ से आती है? हार्ट से आती है. बिकॉज देयर इट इज स्टोर्ड, नॉट इन द माइंड. हार्ट में भी ऐसी फीलिंग्स होती है, तो वो फीलिंग आती है, और वो फीलिंग जो है वो ब्रेन साथ में कनेक्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू फील इट. और सोचो, अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो आपका हार्ट क्या करेगा? तो दैट इज वाई जो स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाया हुआ था, ट्री एंड हार्ट, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड. और लोग क्या करते हैं, ट्रीज के बाग के ऊपर जाके अपना दिल बनाते हैं, आई लव यू. बहुत सारे यंग गर्ल्स एंड बॉयज क्या करते हैं, उनका नाम लिखेंगे, ये लिखेंगे, राइट. कनेक्टिविटी. तो कनेक्टिविटी थ्रू दैट, देखो ऑक्सीजन और ट्रीज कैसे अपना कनेक्टिविटी हार्ट के साथ में है. दैट इज व्हाई दे से बी थैंकफुल टू द नेचर, बी थैंकफुल टू द ट्रीज, हग द ट्रीज, उनको अपना ड्रीम बोलो. जब भी आप पार्क में जाते हो ना, तो हग करो ट्रीज को, पकड़ के ट्रीज के साथ बात करो, आप देखोगे वो भी सुनते हैं आपकी बात. पर हमने ये सब चीजें कभी ट्राई नहीं की, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड बोलते हैं ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा कभी होता है क्या, हम ट्री से बात करेंगे. मेरी खुद की बेटी बोलती है बहुत बार, जब मैं उसको बोलती हूँ तो लॉजिकल माइंड जिनका रहता है ना, वो कभी भी मैजिक्स देख ही नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में. ये बुक में वेरी स्टार्टिंग में लिखा है कि जब आप दिल से हर चीज को एक्सेप्ट करोगे, दिल से फील करोगे. बिकॉज नाउ आई कैन आई लिटरली, मैं सबके सामने बोलती हूँ कि मेरा मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है. मुझे लोगों ने सामने से बोलते हैं, अरे तू ये चीज मैनिफेस्ट करना, तेरा मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होता है, तू हमारे लिए भी कर. क्योंकि मुझे परसों भी बोला गया एक चीज मैनिफेस्ट करने के लिए, जब हमारे ये मेंटर अभी पुणे में आए हुए थे, तो और 45 मिनट्स में वो मिराकल हुआ. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. बिकॉज आपकी प्रैक्टिस ही आपको लेके जाएगी हर चीज के अंदर. अगर पहले की प्रैक्टिसेस भूल गए, मैं आपको लास्ट में है ना एक स्ट्रक्चर बना के दूंगी कि आपको प्रैक्टिसेस कैसे करना. वी विल गो ऑन द फोकस ग्रेटिट्यूड एंड वी विल डू द प्रैक्टिसेस ऑल्सो. जिन्होंने मिस की है, जो नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वी विल टेक टाइम ओनली टू डू प्रैक्टिसेस, सो दैट ये बुक सिर्फ पढ़ के ये नॉलेज लेके कुछ मतलब नहीं होने वाला. द मोमेंट यू विल प्रैक्टिस विद ग्रेटिट्यूड, आपको बहुत अच्छा फील आएगा. So once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. एंड जनरल रूल ये है कि जब आप आंखें बंद करके करोगे ना, आपको बहुत सारे मिराकल्स भी पता चलेंगे, और वो एक फीलिंग आएगी
क्योंकि हम अपने आप को उतना शांत कर ही नहीं पाते हैं। हम 2 मिनट के लिए भी ऐसे बैठे ना, तो दिमाग में थॉट आता है, अरे वो कल ये करना है, अरे हमको इधर जाना है, अरे कल इसका पेमेंट करना है, अरे मुझे रिपोर्ट्स बनाने हैं, अरे मेरा ऑनलाइन एग्जाम है, अरे मेरा ये है, मेरे जो ऑफिस में ये मीटिंग है। हमारा दिमाग कंटिन्यूस यही चीजों पे फोकस रहता है। तो जब आप शांत बैठना, अपने आप को शांत करना शुरू कर दोगे ना, बाय फोकसिंग ऑन योर हार्ट, यू विल सी द डिफरेंस. There are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart and keep your mind focused there while you say the magic words thank you, जो अभी हमने किया, right? Or you can imagine that the magic words thank you are coming out of the heart rather than your mind as you say them. तो जब भी आप थैंक यू बोलते हो, तो ऐसे करो कि यार सच में मेरे दिल से आ रहा है, ये मेरे दिल से आ रहा है करके हम बोलते हैं, दिल से बोलो. हम बार बार हमारे बच्चों को, घर वालों को बोलते हैं, सच में बोलो यार, आप मुझे दिल से प्यार करते हो क्या नहीं, दिल से प्यार करते हो क्या नहीं. तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिल में वो फीलिंग होती है, दैट इमोशन. एंड दैट इमोशन यू हैव टू ऐड टू योर ड्रीम्स. दैट इमोशन यू हैव टू रियली ब्रिंग इट आउट इन ग्रेटिट्यूड. तभी जाके आप वो मैग्नेट बनते हो मैजिक्स अट्रैक्ट करने के लिए. As a part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. आपने लिस्ट 10 डिजायर की लिस्ट बनाई थी हमने, उसकी आप उसमें से एक लो. मैं बोलती हूँ पहले एक लो, पहले एक के ऊपर वर्क करो. वो कंप्लीट हो जाए, देन यू गो टू अनदर वन. एंड इफ यू फील यस, आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की है और आपकी प्रैक्टिसेस पे आपको पूरा भरोसा है, देन यू कैन टेक एटलीस्ट 3 to 4. क्योंकि आई प्रैक्टिस ओनली विथ वन, आई नेवर डू वन टुगेदर, बिकॉज आई स्टिल फील कि नहीं, उतना पावर लगाना हर चीज के लिए डिफिकल्ट हो जाता है. तो इट्स बेटर दैट यू वर्क ऑन योर वन डिजायर. जब आपकी एक डिजायर ये प्रैक्टिस करके कंप्लीट होगी ना, तो आपका बिलीव बढ़ता है. और जब आपका बिलीव बढ़ता है ना, इट बिकम्स मोर इजियर टू डू द प्रैक्टिसेस. So read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, just close your eyes. Focus your mind on the area around the heart and keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you slowly. दिल पे हाथ रखोगे, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी. अभी तो ऐसा होता है ना कि मुझे लिखना भी नहीं पड़ता. मैं कभी कभी हाथ पे ऐसा दिल पे हाथ रख के मैं कभी बात करती हूँ, यार मेरी सच में ये दिल से इच्छा कि मैं आज जलेबी खाऊं. थोड़ी देर में मेरा बेटा नीचे से फोन करता कि मम्मी तुमको कुछ मीठा खाना है. दिस इज हाउ द मैजिक हैपन, बिकॉज आपने दिल को फील करके वो बात बोली. आपके मुंह से अगर कोई बात निकली, आपने फीलिंग को लाके बोला, तो इमीडिएटली वो यूनिवर्स में पहुंच जाती है. एंड इट कम्स बैक इन, योर विशेस गेट फुलफिल्ड. इवन द स्मॉलेस्ट थिंग. उसके लिए मैं बोलती हूँ हमेशा छोटी छोटी चीजों से मैनिफेस्ट करो, तो बहुत ईजी होता है. सो वेन यू गेट टू द एंड ऑफ रीडिंग, आपने हार्ट के ऊपर फोकस रखना है एंड से द मैजिक वर्ड्स अगेन, थैंक यू स्लोली. एंड अगेन यू कैन यूज the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, हर ने तो आपने जो भी आपने लिस्ट में लिखा था आपके ड्रीम्स, आप हर एक ड्रीम को लेके आप हार्ट के ऊपर फोकस करो. बट एटलीस्ट आपको फिर 5 मिनट्स फोकस करना है. आप बोलोगे मैंने 2 मिनट ऐसे किया, मैंने आपको अभी सिर्फ ग्लिम्स दिया. हमने जो प्रैक्टिस किया दैट वाज जस्ट अ ग्लिम्स कि हाउ यू आर गोइंग टू डू द प्रैक्टिस. बट आपको बहुत डीप तक जाना है. आपको हार्ट के ऊपर हाथ रख के फील करके, आप जितना उसको फील करके करोगे, आप देखोगे आपकी हर डिजायर में मोशन आना शुरू हो जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? कि आपको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए आइडियाज सामने से आएंगे कि आपको ये करना, अरे मुझे ये करना चाहिए तो ये वर्क होगा, अरे मुझे ये करना चाहिए, ऐसे. So after you have finished your heart magic on each your desire, you will have not only increased the depth of the gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. And you can continue to practice the heart magic on your desires regularly. See, she is saying you can practice every day. जब भी आप बैठे हो, आपको विजुअलाइज करना है, तो जब हम ड्रीम का विजुअलाइज करते हैं तो आपका हाथ हार्ट पे जाने दो, फोकस करो वहां पे भी.
and just say your dreams to it. So you can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use your heart magic anytime you say the magic words, thank you. Even just using the heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. सबसे पहले इसका मंत्र यही है कि आपको खुश रहना है. आप जितना खुश रहोगे, आप लैक की फीलिंग में नहीं जाओगे, आपके पास जो नहीं है उसके ऊपर आप फोकस नहीं रखोगे, और आपके पास जो है आप उसके लिए प्रैक्टिस करते रहोगे. यू विल सी the magic's happening every day. So that is what she's saying, that even just using the heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Once you have practiced the heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with the gratitude, it's all about the depth of the feeling. So once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. Very clearly, see, I'll read again. Understand the words. Why I repeat few words is there is the where ये words में secret छुपी हुई है. See, once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. आपको feeling आनी शुरू हो जाएगी डेप्थ से. एंड विद ग्रेटिट्यूड इट्स ऑल अबाउट द डेप्थ ऑफ फीलिंग. जितना आप फील करके वो प्रैक्टिस करते हो, जितना आप दिल से थैंक यू बोलते हो, आप देखोगे यू आर अट्रैक्टिंग मोर थिंग्स. एंड बिकॉज द डीपर द फीलिंग, द ग्रेटर द अबंडेंस यू विल रिसीव. उतना अबंडेंस, यानी फिर चुटकियों में आप बोलते हैं, जैसे चुटकियों में काम होना शुरू हो जाता है आपका. बट वो फीलिंग लाना बहुत जरूरी. अगर आप वो फीलिंग नहीं ला पाते हो ना, दैट मीन्स यू हैव नॉट रीच दैट लेवल. आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं हुई है, आपका माइंडसेट उतना चेंज नहीं हुआ है. एंड दैट इज हाउ द राइटिंग हेल्प्स यू. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you are getting a tingling feeling around your heart. जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, आपको एक अजीब सी फीलिंग आएगी हार्ट के पास, तो वो आपको बताएगा कि यस यू आर डूइंग द राइट थिंग. आपको फिजिकल साइंस में ये दिखेगा कि कोई टिंगलिंग टाइप की एक फीलिंग आप महसूस करोगे अराउंड द हार्ट, एंड यू विल फील अ वेव ऑफ जॉय. और ऐसे खुशी की फीलिंग, यू विल जस्ट फील अ वेव ऑफ जॉय रश थ्रू योर बॉडी. योर आईज में फिल विथ टीयर्स. ऐसे भी हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस करते करते रोना आ जाए, क्योंकि दिल से आप बोल रहे हो, दिल से. तो ऐसा भी होता है कि किसी किसी को रोना आता है. ओके, और यू मे गेट अ गूज बम्प्स. So these are the physical signs that you are doing the practices right, and you have increased the depth of the feeling of gratitude. But without exception, you will feel to begin the depth of peace. Who wants peace? सबको पहले peace ही चाहिए, right? मैंने बोला ना, when you have peace, when you have happiness, when you have good health and good relationships, मनी इज द बाय प्रोडक्ट जो उस एरिया में अपने आप आना शुरू हो जाता है. बिकॉज अगर आपके पास पैसा आ गया बट आपके घर में चिक 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 है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, रोज आपके फाइट्स हो रहे हैं घर में, कोई ना कोई दूसरी बात को लेके, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट पैसे का कुछ उपयोग ही नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि पैसा तो आ गया है. मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया यार, मेरे पास तो बंगला आ गया, मेरे पास गाड़ी आ गई, मेरे पास पैसा आ गया, बट मेरे पास सुकून ही नहीं है. तो it's useless. So that is why she says to live a balanced life, and that is why she says, कल क्या परसों किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था. I'll tell you about that also. Magic practice number 20, heart magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings and write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as you're grateful for that blessing as you can. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you.
Take your top 10 desire list and practice the heart magic by reading each desire and then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart and slowly saying thank you again. And आपका rock practice तो है ही, right? Tomorrow is the day 21, magnificent outcome. Now, before we move, we are going to do one practice. अपना chapter अभी खत्म नहीं हुआ है. आपको मैंने बोला था one cutout to keep ready, right? अभी why I made you do this today, why are we doing this creative activity? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि कनेक्टिविटी नहीं फील होती है हार्ट के साथ में. ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस विद दिस, आज आप क्या करने वाले हो इससे? This is the front side, this is the back side, right? Today I am going to write thank you, thank you, thank you. आपकी जो पहले सुन लो, first understand the complete instructions and then we are going to work on it. Keep your pen with you. If you have a green pen, more better, nothing, so still it's okay. Up, you're going to take the heart cut out. You're going to write thank you, thank you, thank you. आपका जो भी ड्रीम हमने डे 13 को सीखा था ना, ड्रीम कैसे लिखना है 5 स्टेप्स में, राइट? आप अभी आपका सिर्फ ड्रीम लिखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट ड्रीम है कि मेरा ये ड्रीम फुलफिल होना चाहिए. तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जो भी आपका ड्रीम हमने, आपको फॉर्मेट याद है? किसको किसको याद है? बोलो, धारा जी बोलो. Thank you, thank you, thank you. I received my new laptop. यस, आई हैव रिसीव्ड माय न्यू लैपटॉप. हमने प्रेजेंट टेंस में बोला, राइट? आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड माय न्यू लैपटॉप. सो आपको वो लिखना है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई हैव रिसीव्ड माय लैपटॉप. जो भी, आई एम गिविंग हर एग्जांपल. आपका जो भी आपका ड्रीम है, आप वो लिखो, राइट? लिख लिया, राइट? First write down this, then I'll tell you what we are going to do. Come on, start. Take the heart cut out and write down on the, सबसे बड़ा ड्रीम आपका क्या है? ट्रेवल डेस्टिनेशन है, मुझे किसी को मिलना है, मुझे एक बड़ा घर लेना है, बड़ी कार लेनी है. Write down that in that format what we have written. Thank you, thank you, thank you. I had already posted on the group that keep your heart cutouts ready, right? Yes, Dhara ji. मैम मेरे पास नहीं है. That is what I'm saying ना. मैंने तो अभी बार बार रिमाइंडर भी दिया था. बट मैंने आज मोबाइल ही आई नहीं एम देखा सो बहुत पर्टिकुलर अबाउट गिविंग द रिमाइंडर. मैं नहीं भूलती, तुम लोग भूल जाते हो यार. क्लास तुमको करनी है, मुझे तो सिखाना है ना अभी तो मैम कैसे मैं भूल आज सकते रात हो? तक मैंने कर तो लूँ. खास बोला उस दिन वाइंड अप, सैटरडे वाइंड अप करने के पहले भी बोला था. और मैंने ग्रुप पे भी इसके लिए दोपहर में डाला. आज मैंने जल्दी डाला लिंक, ताकि अगर किसी ने नहीं रीड किया तभी तो उनको एटलीस्ट वो रेडी कर लेंगे. बट मैम मेरा आर्ट तो अहमदाबाद बैठा है. क्या क्या? मेरा आर्ट तो अहमदाबाद बैठा है. ऐसा है क्या? बुलाओ फिर उसको. आ जाओ आप. मैं आ गई हूँ पुणे डार्लिंग. अरे वाह. मैं मैम पुणे मैं आ ट्राई गई. करूंगी और मैं आपको फोटो भी भेज दूंगी मैं जो लिख लूंगी ना. गई थी ना. हाँ मैंने देखा, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं. अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है रिट्रीट. मेंटर्स हैड कम, अश्विन मैम हैड कम टू पुणे एंड मैं कल फ्लाइट में फ्लाई की. एंड जो मिराकल हुआ है ना फ्लाइट में भी परसों रात में, एक तो मैं आई वॉज अवेक 5:30. आई टुक योर सेशन एट 8 o'clock. आई डिड नॉट स्लीप एट नाइट. रात के 12 बजे तक मेरी बेटी के पैकिंग में हेल्प चल रहा था. एंड देन आफ्टर दैट वी वेंट टू द एयरपोर्ट एट 12 o'clock एट नाइट एंड चेक इन वगैरह करके हम बैठ गए थे अंदर. और फिर बाद में फ्लाइट थी 2:45 मेरी और उसकी 4:10 की थी बैंगलोर की. तो आई रीच्ड, मैं मेरी फ्लाइट में बैठी तो मैंने वहां पे भी कार्ड्स बना लिए थे बैठ के. मैंने वहां पे भी थैंक यू कार्ड्स, नहीं था पेपर. मैं नीचे उतर के गई थी मेरी बेटी के घर के वहां पे स्टेशनरी शॉप से, मैंने देखो ऐसे कार्ड्स बनाए थे. वाओ, इट्स अमेजिंग. और मैंने ये ही कार्ड जैसे एंटर, पहले तो मैं क्या लगाया था कि आई वॉन्ट अ सीट नियर द विंडो.
मेरा जैसे चेक इन हुआ, मेरे को मेरा कार्ड मिला, आई थिंक आई हैव और आई थ्रू इट, उसके ऊपर लिखा था, आई हैव आई थिंक, उसके ऊपर लिखा था 1A, यानी स्टार्टिंग का ही मुझे मिल गया। फर्स्ट सीट नियर द विंडो वॉज माइन, एंड आगे वाली सीट में इतनी स्पेस होती है, ये पहली बार मालूम पड़ा, क्योंकि ये पहली बार मैं आगे फर्स्ट सीट मिली मुझे। मैंने ऐसे मैग्निफिकेंट आउटकम नहीं लगाया था कि मुझे पहली सीट मिल रही, मैंने सिर्फ ये बोला था कि आई वॉन्ट अ सीट नियर द विंडो, मेरी सीट विंडो के पास होनी चाहिए। तो वो मिल गई, और जैसे मैं एंटर हुई मैंने ये कार्ड दिया, पहली जो एयर होस्टेस खड़ी थी उसको ये कार्ड दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं करती हूँ, देखो सिर्फ ऐसा, और मैंने ये लिखा था, थैंक यू फॉर ऑल दैट यू डू, आई डोंट राइट माई नेम ऑल्सो, विथ लव एंड ग्रेटिट्यूड, एंड यहाँ पे लिखा था कीप स्माइलिंग। एंड the moment she saw, she felt so happy. She said, so nice of you, ma'am. उसने, देखो, her action was, I do all my observation. Her action was, so nice of you, ma'am. You really made my day. And जो पीछे थी, अब मैं तो पहले सीट में लेके बैठ गई, दो आदमी ऑलरेडी पहले बैठे हुए थे बी और सी वाली सीट में, और एक पीछे वाली आई तो वो उसको बता रही थी कि देख मुझे कार्ड मिला। तो शी स्टार्टेड लुकिंग एट मी, आई सेड नो नो आई हैव फॉर यू ऑल्सो, एंड आई कॉल्ड हर, फिर मैंने उसको भी दिया। शी ऑल्सो बिकेम हैप्पी। बाद में थर्ड एक आगे आई, तो आई सेड आई हैव नॉट गिवन यू ना, तो मैंने उसको भी कार्ड दिया। आई हैड नियरली मेड 15 कार्ड्स, मैंने उसको भी दिया। उसके बाद प्लेन चालू हो गया, सब एवरीथिंग, आई वॉज नॉर्मल। मुझे थोड़ी सी झपकी लग गई नींद की जब प्लेन चालू हुआ, बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड। एंड जैसे झपकी लगी, 20 मिनट्स में तो पुणे में हो गए, आ गए थे हम, बट इट वॉज स्टिल ऑन द कि आगे फ्लाइट का लैंडिंग के लिए प्लेस नहीं मिल रहा है, बिकॉज अदर फ्लाइट हम जल्दी पहुंच गए, तो वीवर हवा में ऐसे लटक रहे थे। मेरी आंख खुली एकदम, और मैं बाहर देख रही हूँ। वन ऑफ देम, जिसको अभी मैंने उसको तो कार्ड भी नहीं दिया था, वैसे ट्रे लेके आई मेरे पास। In that there was mixed fruit like mixed dry fruits का roasted nuts, one tank का glass and one cookies का पैकेट। तो she said no ma'am you take, और उन्होंने एक नोट खुद के हाथ से मुझे लिख के दिया हुआ था, जिसके ऊपर लिखा उन्होंने कि थैंक यू, योर नोट मेड अस like made our day, and this is that note। Oh, so sweet. एंड उन्होंने अपना नाम भी लिखा, फ्लाइट का नंबर भी लिखा। अब मैं नींद में थी, बीइंग वेरी फ्रैंक, मैं बहुत नींद में थी तभी, बिकॉज आई वाज रियली वेरी टायर्ड, और बिकॉज आई एम नॉट अ नाइट पर्सन। और उनका ऐसा हो गया कि ये जो नोट है ना, उन्हें ट्रे में रखा हुआ था, तो आई डिड नॉट फर्स्ट सी द नोट। मुझे वो जिद करते रहे, नहीं तो आई सेड नो नो दैट इज माय जेस्चर विच आई डू फॉर ग्रेटिट्यूड, आई डोंट वांट एनीथिंग। मैंने इतना उनको, नहीं आई डोंट हैव, क्योंकि मिडनाइट था, और मिडनाइट में आई एम वेरी पर्टिकुलर कि आई डोंट ईट एनीथिंग एंड एनीथिंग। तो उन्होंने इतना जिद किया कि नहीं मैम ये टैंग है, आप लो ना प्लीज, आप टैंग है इतना तो लो। देन आई सेड ओके चल, बिकॉज ऑफ यू आई टेक दैट, तो मैंने वो लेके पीना चालू किया। तो she said, no, you have to take this also. No, please, she was pleading. I mean, I was shocked कि सिर्फ थैंक यू बोलने से इतने मिराकल्स होते हैं। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, ना मैंने उसको पैसे दिए, ना मैंने उसको लालच दिया, ना मैंने उसको प्लीज किया, ना मैंने उसकी कोई तारीफ की कि भाई तू बहुत अच्छी है, तू इतनी स्माइल, कुछ भी नहीं किया। बट शी वॉज फोर्सिंग मी सो मच। जैसे वो टैंक पिया, शी टुक द ग्लास एंड शी, मेरे लैप में उसने वो दोनों नट्स का और उसका पैकेट रख दिया। एंड आई व्हेन आई सॉ द नोट आई रियली सेड थैंक यू। एंड मैंने फिर वो फोर्थ वाली को भी कार्ड दिया, क्योंकि उसको कार्ड नहीं दिया हुआ था मैंने, एंड शी बॉट द ट्रे, एंड आई वाज रियली वंडरिंग। And they were smiling even when I left. They said, thank you, ma'am. You really made our day. And they've written, thank you so much for the lovely note. Your note made our day. It means a lot. Hope to see you soon again. 6E699, Mariam, Geetika, Khushbu and Grishma. उन्होंने अपने नाम भी लिख के दिए मुझे। Imagine. So I'm collecting so मैम आज तो आपकी वाइब्स हमको भी फील हो रही है। इवन मैं सुबह से सोच रही थी मैम आपका वो, मैम ने एक वीडियो भी रखा है, मैं उसमें आपको ढूंढ रही थी, तो आप थर्ड फोर्थ लाइन में थे, रो में थे। मैंने बोला वो भी मारियम मैम मैनिफेस्ट कितना किया आते था, थे रोज। वो भी मैनिफेस्ट किया था। And अरे वाह, I got from ma'am this also। कल ये मैम सबको नहीं बांट रहे थे, बट
शी जस्ट सेड कि कौन कौन मैजिक बुक सेशन, पहले तो उन्होंने पुणे को टीम को दे दिया, और फिर उन्होंने बोला कौन कौन मैजिक बुक सेशंस ले रहा है वो भी बाहर आओ खुद से। तो मैं गई, मेरे साथ और 4-5 लोग थे, हमको सबको ये नोट मिला, what we have written, thank you for all the money I have been given throughout my life. अमेजिंग, बहुत बहुत खुश And लग रही हूँ not मैं भी only खुद that, देख। I got a book also from ma'am. अरे वाह। लास्ट में उन्होंने ये बोला था कि ग्रेटिट्यूड कौन कौन कितना लिखता है, तो आई रोट माय नेम इन द चिट एंड वी पुट इट इन द जार। उसमें भी हमको ये नोटबुक मिली। सो मैम आज तो मैंने भी एक चीज मैनिफेस्ट की थी, मैं सोच रही थी, मैं मतलब आपको पूछने वाली थी, बट मैम के उसमें मुझे आंसर मिल गया। जैसे है ना, काफी बार क्या होता है कि सुनते सुनते हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, मोबाइल कुछ चालू होता है, कुछ म्यूजिक चालू होता है, तो फीलिंग नहीं आती है अपन को, हम हार्ट के साथ कनेक्टेड नहीं हो पाते। और मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बोला था कि तुम सुनते सुनते करो, बट अब मुझे वो चीज मजा नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी जब मैं मोबाइल स्विच ऑफ करके जब ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ ना, या एकदम फ्लाइट मोड पे रख के लिखती हूँ ना, वो जो फीलिंग आती है और वो जो ग्रेटिट्यूड कमाल का रिजल्ट लेके आता है, ऐसा रिजल्ट अभी वापस मुझे चाहिए। और वही चीज मैम बिकॉज ने बोली आज। बिकॉज अपना फोकस उस पे चला जाता है जो हम रियली कर रहे हैं। दैट इज वाई यस, हम बोलते हैं कि बिकॉज 1 घंटा तो फीलिंग, 1 घंटे के बाद तो फीलिंग का आना स्टार्ट होता है बेसिकली। यस, यस। सो यू ऑल रोट योर ड्रीम, everyone, write it down. If you have not written, write it down. राइट इन द फॉर्मेट ऑफ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इवन अगर आपके पास नहीं है तो अच्छा, जिसके पास नहीं है ना, आप हार्ट का शेप बना लो, ड्राइंग हार्ट का शेप बना लो आपकी जर्नल में, एंड यू मे राइट इन दैट। दैट ऑल्सो गिव्स यू कनेक्टिविटी, आपकी कनेक्टिविटी उसमें होती है, आपको फीलिंग आती है फिर। अभी आज आपको समझ में आएगा कि हम ये एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, to bring more deeper feeling. Sometimes we don't have that feeling. हम कितना भी फिजिकली करते हैं ना तो वो फीलिंग नहीं आता है, तो हार्ट ड्रॉ कर लो बड़ा सा and write it down in that. And when you're done, let me know that I'm done. Done. Okay. Done. Akila ji done. मंजू मैम डन। ओके, नाउ रमेश जी आपने लिखा, ताहिरा जी you're done. Yes, done, done, done. Now on the back Yes, side, ma'am. ऑन द बैक साइड, चलो गुड। अभी बैक साइड में आज आपको क्या लिखना है ये ध्यान से करो। आज आपको, आज आपने आपके दिल के ऊपर, आप ऐसा फील करो कि आज आपने आपके दिल के ऊपर आपने एक ड्रीम डाला है, आपने एक दिल को बोला है कि मुझे ये ड्रीम चाहिए, राइट? जो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट ड्रीम था, अब पीछे ये लिखो, एक एक कौन सा एक्शन आप लोगे उसके लिए, आप कौन सा एक्शन लोगे उसके लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर लिखा कि आई हैव गॉट माई लैपटॉप, सो व्हाट इज माई इंस्पायर्ड एक्शन, व्हाट एक मैं एक्शन अभी नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए, कि मैं रोज ग्रैटिट्यूड लिखूंगी पहले के लैपटॉप के लिए, या फिर मैं उसको विजुअलाइज रोज करना शुरू कर दूंगी, ज्यादा से ज्यादा मैं विजुअलाइजेशन में चली जाऊंगी, राइट? तो आप इस तरीके से आपके ड्रीम से सोचो कि आप ऐसा कौन सा एक्शन लोगे आपके ड्रीम के लिए। एग्जाम्पल, मुझे ट्रैवल करना है, राइट? और मुझे अगर टिकट्स बुक करनी है तो आई विल, व्हाट एक्शन आई एम गोइंग टू टेक। अभी टिकट्स बुक करनी है तो मुझे पहले पैसे चाहिए, तो व्हाट आर द एक्शन आई एम गोइंग टू टेक, कि मैं पहले सेविंग्स करूंगी, कि आई विल स्टार्ट सीइंग दैट आई एम डूइंग द सेविंग्स इन द नेक्स्ट 15 days, कि दिस मच मनी मेरे पास आ जाए, फिर मैं मेरी टिकट बुक कर लूं। सो व्हाट इज द एक्शन यू आर गोइंग टू टेक, वन इंस्पायर्ड एक्शन आपको लिखना है आज, सो दैट यू डू इट एवरी डे। थिंक एंड राइट डाउन।
थिंक करके लिख दो, जिसके पास नहीं है आप हार्ट का शेप ड्रॉ करके लिख लो, बट राइट इट डाउन. It will be in the present tense, right? Yeah, it will be in present tense. What are you going to do every day now, henceforth? ये ड्रीम को फुलफिल करना है, तो आपने आपके हार्ट को बोला है कि मुझे चाहिए, तो अभी इसको आप कौन सा एक्शन ले रहे हो उसके लिए? मैम कैन आई स्पीक? यस धारा जी. मैम पहले तो मैं विजन बोर्ड बनाऊंगी मेरा न्यू लैपटॉप के साथ विथ माय स्माइली फेस, वो एडिटिंग करूंगी। फिर मैं 8 मिनट का या 6-7 मिनट का स्क्रिप्टिंग लिखूंगी कि मुझे ऑलरेडी रिसीव हो गया है और मैं कैसे खुश हो रही हूँ और मैं किसको बता रही हूँ कॉल करके, और उस दिन पे मैं क्या खाऊंगी। जैसे मुझे अच्छा लगता है ट्रफल केक, तो मैं उसको विजुलाइज करूंगी 5 सेंसेस के साथ। बट एक और एक्शन एक लिखो, इतना सारा मत लिखो कि जो आप नहीं करोगे, कि सिर्फ बोलने के लिए कर रहे हो। एक जो नहीं, दिल से आप श्योरली करने वाले हो कि हाँ भाई ये वो इतना तो श्योरली मैं कर लूंगी कि रोज, क्योंकि मैंने ये मेरा ड्रीम मेरे हार्ट पर लिखा है, और मैं उसको मैं रोज करूंगी, यानी मैं करूंगी ही करूंगी वो हाँ, एक्शन. और लास्ट वाला मेरा ये है कि मैं श्योरली करूंगी, वो है कि मैं सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक सारे गैजेट्स हैं ना पास्ट में जो मुझे मिले हैं हाँ, उस सब यस. के लिए मैं ग्रेटिट्यूड You लिखूंगी। write, you will write gratitude more about the past things, all for all the gadgets you have used. Maybe it could be TV, it could be your mobile phone, it could be anything. कंप्यूटर आपने कभी कहीं किधर ऑफिस में जाके यूज किया होगा किसी के, आप उसके लिए लिख सकते हो, राइट? आप रेडियो चलाते हो, आप उसके लिए लिख सकते हो, आप म्यूजिक सिस्टम चलाते हो, आप उसके लिए लिख सकते हो. So you can write about that. So this is about doing something to achieve that goal, is it? Yes. Okay. I didn't get you. I didn't get you, नहीं Prashant. नहीं, मतलब मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया कि लिखना क्या है, because action, is it an action towards achieving the goal? Yes, what one inspired action you're going to take right from tomorrow for that? Mhm. जी मैम, हिंदी में एक बार और एक्सप्लेन करूँ? देखो मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि आपको हार्ट का कटआउट रखना है। अभी आज हम हार्ट हार्ट मैजिक कर रहे हैं, राइट? तो हार्ट मैजिक में हमको क्या करना है कि हमने हमारा ड्रीम लिखना है, जो हमारा टॉप मोस्ट ड्रीम है, यानी अभी हमको जल्दी से जल्दी चाहिए, चाहिए ही चाहिए मुझे वो। तो आप आपके दिल से बात करने वाले हो ना आज, उसके लिए तो आपको वो कटआउट के ऊपर आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे धारा जी का सपना है कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, राइट? सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई हैव गॉट माई लैपटॉप, राइट? और पीछे की तरफ आपको ये लिखना है कि व्हाट इज द इंस्पायर्ड एक्शन आई एम गोइंग टू टेक, इमीडिएट एक्शन। इंस्पायर्ड बोलो तो आप इमीडिएट एक्शन कौन सा लोगे कल से, वो भी लिखना है। से अगर अगर लैपटॉप का एग्जांपल हो, हाँ, बिकॉज लैपटॉप लेना है तो आपको पैसा चाहिए, हाँ. तो इज इट टुवर्ड्स मनी दैट यू विल राइट? नो, सी, व्हाट इज द एक्शन यू आर गोइंग टू टेक, वो अभी आप जानते हो आपके ड्रीम के बारे में कि आपका एक्शन क्या होगा, कि मैं एक्शन क्या लेने वाली हूँ, कि मैं अपना रोज ग्रैटिट्यूड पहले लिखूंगी, राइट? देखो वो तो आप पैसा तो डेफिनेटली पैसा तो लगने वाला है, तो वो आप उसके लिए सोचोगे भी, बट मैं ये बोल रही हूँ कि कल से इमीडिएटली एक वर्किंग करना है आपको, एक ड्रीम पकड़ के आपके एक ड्रीम के ऊपर वर्क करना है। तो आप उसको किस तरीके से करोगे, आपका पहला एक्शन क्या होगा, राइट? अभी जैसे धारा जी बोल रही है लैपटॉप, तो उनको लैपटॉप के लिए वो पहले, अभी उनके मन में आ रहा है कि मैं पहले ग्रैटिट्यूड लिखूंगी, राइट? तो वो आप करोगे क्या सिंसियरली रोज, वो आपको वो देखना है। या फिर आपको, आप जैसे भी आप बोल रहे हो कि पैसे, तो आप क्या करोगे, पैसे के लिए क्या करोगे? अगर आपको पैसा इकट्ठा करना है या आपको ईएमआई पे लेना है, आप क्या उसके उसका एक्शन लोगे कि नहीं, कि अगर मुझे ईएमआई पे लेना है तो मैं देखूंगी कि मेरे को डाउन पेमेंट कितना करना है, राइट? मैं जाके पूछ के आऊंगी कि हाँ मुझे ये कंपनी का लैपटॉप कितने में पड़ रहा है,
फिर वो कंपनी का लैपटॉप का मैं उसका बजट निकालूंगी। अच्छा, ईएमआई पे जाता है तो मैं कितना पे कर रही हूँ, तो मुझे डाउन पेमेंट कितना करना है, मेरे ईएमआई कितने इसमें, तो वो आप पहला एक्शन क्या लोगे उसके लिए, आप वो देखो। आया क्लैरिटी रमेश जी? क्या और कुछ? जी मैम। ओके। So write down that. मैं भी लिख रही हूँ। When you write in the mass, when we are together like that and we are writing, the mass energy also pulls in and it brings more miracles to your life. Think and write. आप जो रोज करने वाले हो फिर, क्योंकि यू आर गोइंग टू प्रॉमिस योर हार्ट टुडे कि आज ये करोगे ही करोगे। दैट इज वाई सेइंग ओनली राइट वन थिंग, कि एटलीस्ट आप वन थिंग तो एक्शन लोगे आप। यू विल, पहला कदम तो बढ़ाओगे। हम सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे, हम सिर्फ बोलेंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे ये करेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। बट एक एक्शन, क्योंकि दैट विल टेक यू टुवर्ड्स योर गोल। तो आप पहला एक्शन क्या लोगे वो आप ध्यान करके लिखो। Write down that. Yeah, I'll show you what I'd written for Ashmin ma'am also. I don't know whether you're able to see. I'm not able to see it, I think because of my background. I had written on 12th 11, that is November, that thank you, thank you, thank you. Ashmin ma'am has come to Pune in Bell Colony. And wow, I am meeting her and shaking hands with her. Wow, the whole day retreat with her is amazing and loving. So much I learned from her and got to learn. And कल वो fulfill हो गया. So it right, how you write. मैम आई रियलाइज्ड, मैंने जैसे ही लिखा ना कि मुझे एक्शन लेना है ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, मैंने लिस्ट बनाई इतनी सारी चीजें का पास्ट का ग्रेटिट्यूड बाकी है मेरा। वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, मोबाइल, That only I'm saying. कंप्यूटर, डेस्कटॉप। That is what I'm saying. रियली You need, अमेजिंग। that is what I'm saying कि you need to recall that हमने बाकी कितनी चीजें छोड़ी है। यस मैम। और मैम मुझे एक चीज और रियलाइज हुई कि जैसे जब मेरे पापा ने मुझे इजीली साइकिल लेके दी थी या मेरे को स्कूटी लेके दी थी, तो उसके लिए मैंने कितनी सारी कंप्लेन की थी, वो तो मैंने भरा ही नहीं है अभी तक, तो मेरे पास तो नहीं है वही हमको तो वही मेरे पास ध्यान तो करना है कैसे कि आएगा। हम क्या सोचते हैं कि अरे हम अभी ये प्रैक्टिस में आ गए, हो गया
हो गया, हम तो थैंक यू रोज लिखते, फिर हमारे ड्रीम क्यों नहीं पूरे हो रहे? अरे ये भी ध्यान करो, आज आपने कितने सालों से कितनी कंप्लेन करी है, तो वो क्या इतनी जल्दी इरेज आउट हो जाएगी क्या? You have to pay how much gratitude. That is why I keep on writing. मैं टाइम ही नहीं देखती हूँ। मैं जब भी, और what धारा जी said ना, sometimes even I do the same thing. If I feel ना कि मुझे कोई परेशान करने वाला है, I either put my phone on this thing mode, flight mode, और फिर मैं उसको या तो म्यूट कर देती हूँ, so that वो बजता भी रहे तो मुझे इरिटेट नहीं करे। And I sit and write my gratitude. तभी आप वो चीज में बराबर से कर पाते हो कॉन्सेंट्रेटेडली। नहीं तो हमने 10 लिखे, फिर बीच में कोई आ गया, हमने बीच में किसी से बात किया, अरे किसी का फोन आ गया, किसी का व्हाट्सएप मैसेज आ गया, फिर हमारा ध्यान उसी में चला गया। दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपनी प्रैक्टिसेस करो, बिकॉज दैट टाइम योर माइंड इज फोकस्ड, you don't have anything, your thoughts are not, your thoughts have not started working, जो एक के बाद आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज हमारा माइंड तो 24/7 काम करता रहता है। जैसे उठे कि इमीडिएटली अरे ये करना है, खाना बनाना है, नाश्ता करना है, नाश्ता बनाना है, आज डब्बे में क्या बनाऊं, खाने में क्या बनाऊं, कितनी चीजें चलती है माइंड में, और हमारा फोकस, दिन हम अच्छी चीजों में स्टार्ट ही नहीं करते हैं। तो हम जब हमारी चीजें अच्छी कर लेते हैं ना, मॉर्निंग का जो 1 आवर 1.5 आवर, आप हम क्या, हमारा फोकस, अरे 8 बजे मुझे जाना है ये काम करने के लिए, 8 बजे मुझे मेरी मीटिंग के लिए जाना है, ये करने, हम इंपॉर्टेंस वो चीजों को देते हैं। बट आप इंपॉर्टेंस जब ये चीजों को देना शुरू करोगे, वो आपके काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं जल्दी जल्दी। आपको फिर वहां पे कुछ मेहनत नहीं लगानी पड़ती, बिकॉज योर माइंड इज फोकस, योर बॉडी इज फोकस, यू हैव बॉट एवरीथिंग इन योर माइंड कि यस ये काम तो मेरा आज होना ही होना है, ये काम तो मेरा आज होना ही होना है। द मोमेंट, imagine I reached yesterday morning and I slept for 1.5 hour and I went again for the retreat. मुझे गिफ्ट लेके जाने थे, और मैं परसों से मेरे बेटे से कोऑर्डिनेट कर रही थी अहमदाबाद से कि मुझे ये वाला गिफ्ट चाहिए जो मुझे नहीं मिला पूना में। मैं उसको बोल रही थी तू जा, तू कुछ भी कर, मुझे ये 2 गिफ्ट चाहिए, तो राजन सर के लिए और मैम के लिए, तो नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने उसको बोला मुझे नहीं पता, मुझे गिफ्ट चाहिए, कुछ तो भी मुझे उनके हाथ में देना, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। ही टोल्ड मी नहीं मम्मी, वो वाली चीज तो तुम जो बेच रहे हो वो तो नहीं मिल रही है, मैं यहाँ पे। वो बेचारा मेरे लिए 3-4 दुकान भागा, बट मेरे माइंड में था कि मुझे कुछ तो देना है, तो ठीक है, कुछ तो देना है। तो आई वेंट ऑन द, मेरे बेटे ने जेप्टो पे, ब्लिंकिट पे कुछ देखा, वो मुझे बोला मम्मी ये पाकर का पेन सेट है, डू यू वांट? And the moment I saw that, it is something different and unique, which I really felt like it will be helpful in gratitude का काम लिखने से होता है। I felt connected more better, जो मैं देना चाहती थी उससे भी। एंड मेरे बेटे ने इमीडिएटली मॉर्निंग में 7 o'clock मेरे लिए वो फिर से उठा है, एंड ही ऑर्डर किया उसने इस पे से, ब्लिंकिट पे से, और एक ही ऑर्डर उसके फोन से हो रहा था। फिर वो बोला मम्मी दूसरा नहीं हो रहा, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा दूसरा। फिर उसने क्या दिमाग लगाया, उसने मेरे फोन पे से दूसरा ऑर्डर किया। तो दोनों बंदे एक साथ में मेरे दरवाजे पे आके खड़े थे, दो दो पैक, एक अपना पैक लेके, एक अपना पैक लेके, गिफ्ट पैक करवा। तो इट वॉज अमेजिंग टू सी हाउ यूनिवर्स वर्क्स। हम सोचते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि हम वो सोच में ही नहीं लाते कि नहीं होता है, बट जब आप सोचते हो ना, यू सी हाउ यूनिवर्स वर्क्स। उसने इतना आइडिया लगाया कि ये कहाँ से हुआ, कि उसके दिमाग में एक ऐसा है कि एक एक मम्मी के फोन से भी ट्राई करके देखता हूँ कि वहां से ऑर्डर हो जाए। तो एक अलग बंदा आया, एक अलग बंदा आया, एक का पैकिंग छोटा था, एक का बड़े पैक में था, और दोनों साथ में खड़े, और मेरा बेटा हंस रहा है, पता है, दरवाजे के पास खड़े रह के, और मैं किचन में चाय बना रही हूँ। वो बोलता है मम्मी यार ये तो मिरेकल हो रहा है। And he said thank you to them, I heard him saying कि भैया दिल से शुक्रिया आपको कि आपने इतने मॉर्निंग में हमको ये ला के दिया। At 7 o'clock it was at my doorstep. Imagine। तो ये चीजें कैसे होती है, बिकॉज आप प्रैक्टिस में हो, आप अगर मैनिफेस्ट करते हो, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हो कि ये चीज मेरी होगी होगी, आपका बिलीफ अगर आप उस चीज में रखते हो, डाउट नहीं लाते हो ना, तो होगी होगी। क्योंकि जब मैं माइंड में बोलती हूँ ना कि नहीं मुझे ये चीज करनी चाहिए, तो मेरे बच्चे क्या, मुझे बाहर से भी लोग आके हेल्प करके वो मेरी चीज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं।
तो ऐसे मिरेकल्स होते हैं बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी। आप उस Yes. और एनर्जी मैम में आ आपको जाते पता हो। है राजन सर को ऑलरेडी पेन्स बहुत पसंद है। राजन सर लाइन लव टू राइट अ पेन, राजन मतलब सर उनको ने पेन मुझे जो झप्पी दिए ना, आते बराबर द होल पब्लिक वाज लुकिंग एट मी द अरे मोमेंट ही वाह, एंटर्ड द हॉल। अरे वाह। ही इज लाइक अ फादर फिगर टू, बड़े बड़ा भाई बोलते हैं ना वैसा। यस, यस, ही इज टू मच लवेबल एंड काइंड और उनसे हार्टेड एंड मैंने एक चीज सीखी है कि यू हैव टू बी अ गिवर। बाकी की यस। चीजें अपने आप आ जाती है आपके पास, आप जितना दोगे जितना दोगे। आई नेवर थिंक अबाउट मनी। अरे कि मैं इतना ये दूं या इतना ये करूं, आई नेवर थिंक अबाउट मनी। और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास, मैं कल वहां पे बैठी थी, मेरे को एक बंदे के पास से 6,000 आने थे। मैं कल जब रिट्रीट में बैठी थी 3:30 बजे वो मेरे जीपे में आ गए 6,000। आई डेंट नोटिस बिकॉज मैं जब मेरे काम में फोकस करती रहती हूँ, मैम का रिट्रीट चल रहा है, आई विल नेवर। तो मैं उसी में थी। बट जब वेन मेरा बेटा मुझे पिकअप करने के लिए, मैं कार में थी और मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे मैसेजेस में दिखा कि 6,000 क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट। वाह, मैंने बोला वाह, साढ़े वाह। तीन बजे आ गए थे, मैंने तो नोट ही नहीं किया। तो ऐसा, यानी आप एक चीज देते हो, जो आपके काम नहीं भी होते रहते हैं ना, वो आ जाते हैं ऐसा। राइट। लेस फील ब्लेस्ड। सो आज आपने अभी आपका ड्रीम लिखा, पीछे आपने लिखा है इंस्पायर्ड एक्शन, राइट। अब आपका ड्रीम लो और आपके जो जो साइड में आपने थैंक यू लिखा है ना, अपने हार्ट पे रखो। चलो सब अपने हार्ट पे रखो। अभी जिन्होंने बुक पे लिया है वो आपकी बुक आप थोड़ा सा ऐसे रख लो, जिन्होंने बुक पे ड्रॉ किया है। एंड जस्ट थिंक अबाउट योर ड्रीम नाउ। पहले तो फोकस करो अपने हार्ट एरिया पे, कंप्लीट focus on your heart. Breathe deeply. Relax. Breathe one more time. Take a deep breath and relax. Take one more deep breath and relax. Read your dream to your heart. आपका फोकस आपके हार्ट पे है। फील दैट कंपैशन। आपका हार्ट आपका साथ दे रहा है। अपनी ड्रीम आपके हार्ट को बोलो। उनको बोलो, आपके हार्ट को बोलो, मेरे दिल की ये इच्छा है, जो भी आपका ड्रीम है ये मेरा पूरा हो गया। मेरे ये दिल की इच्छा है, मेरा ये ड्रीम, जो भी आपका ड्रीम है वो बोलो, पूरा हो गया। रिपीट इट 3 times। Smile on your faces. No hardness, no hard feeling कि कब आएगा, कैसे होगा। बस इतना फीलिंग कि मैं उधर हूं, जो भी आपका ड्रीम है। Bring that feeling to your heart. आपकी आंखें बंद करो और आपकी आंखों में वो ड्रीम विजुअलाइज करो कि वो ऑलरेडी आपके पास है। आप अगर ट्रैवल पे जाना चाहते हो तो आप ऑलरेडी अपने आप को देखो कि मैं वहां पे हूँ। आपका लैपटॉप का सपना है तो आप देखो लैपटॉप आपके लैप में है, आपके टेबल पे है, एंड आप उसके ऊपर हैप्पीली काम कर रहे हो। जो भी आपका सपना है, किसी का कर्ज, किसी का डेब्ट पूरा करना है, पेमेंट करनी है किसी की, फील करो मैं कितना रिलैक्स फील कर रहा हूँ यार, उसकी वो पेमेंट चली गई है। थैंक यू माय हार्ट, थैंक यू माय दिल।
मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील दैट फीलिंग इन योर हार्ट। फील करो कि आपका हार्ट ने आपके पास आपका उसका हाथ बढ़ाया है आपके ड्रीम के लिए, और आप उसका हाथ पकड़े हुए हो। फील करो कि हार्ट ने आपका हाथ पकड़ा है। कभी फील किया है ऐसा? ऐसा फीलिंग लाओ कि आपका हार्ट सच में आपके बॉडी में से अपना हाथ आगे कर रहा है और आप उसके हाथ को पकड़ पा रहे हो। और आपका कनेक्शन बन गया है आपके हार्ट के साथ। कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है, और आप उसको थैंक यू बोल रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Gently rub your hands and open your eyes. Keep it on your eyes. And open your eyes. And how's the feeling? Who could connect? कौन कौन कनेक्ट कर पा रहा था? मुझे तो दिखता है मेरा हार्ट में से ऐसे हाथ बाहर आ रहा है और वो मुझे बोल रहा है कि ले तेरा ड्रीम मारिया ले। ऐसे मुझे फील होता है। कैन इमेजिन दैट। यू कैन। आई होप यू ऑल आर एबल टू डू दैट। अगर नहीं फीलिंग आता है तो ऐसी प्रैक्टिस बैठ के रोज करो। किसी को रोना भी आएगा। देखो, जब आप डीप फीलिंग में जाते हो ना, इनिशियली मुझे बहुत रोना आता था क्योंकि ऐसा लगता था यार सच में मेरा सपना पूरा हो गया, और फिर रोना आता था, खुशी के आंसू भी आते थे। यस धारा जी। यस धारा जी। मैम आज फर्स्ट टाइम मैं ऐसा फील कर पाई कि मैं मेरा लैपटॉप है ना चार्जिंग पे रख रही हूँ, और वो टचिंग वाली सेंस भी फील कर पाई कि मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है। वो सिल्वर कलर का है, और वहां पे भी लाइट जल रही है, यहाँ पे भी लाइट जल रही है, और मैं लिटरली वर्क कर रही हूँ उसके ऊपर। मेरी आई की सेंस, और उसमें से जो नया लैपटॉप खुलता है तो उसकी अलग से जो स्मेल आती है, वो मैं सब कुछ महसूस कर पाई। वेरी गुड। तो थैंक। यस, वेरी I गुड। also felt a lot, Maria. या I also felt a lot. I was ग्रेट। crying literally. I could see, that is why I said कि किसी किसी को रोना आएगा, because Hmm. when you really feel it with your heart ना। Amazing Hmm. Akila ji, I'm really happy you could reach to that level, really. ये होता है only when you have reached, when you have really felt that feeling. because मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ और मैं ये करती हूँ, आप लोगों के साथ में भी करती हूँ ना, तो वो मुझे फीलिंग आता है। वो मुझे फीलिंग आता है। Hmm. आई कुड लिटरली फील कि मेरे हार्ट में से वो हाथ, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे बोल रहा है कि यस मारिया तेरा ये ड्रीम हो गया पूरा। तो दैट फीलिंग शुड कम। हमको लगता है कि नहीं, बट हमारा हार्ट, हमारी बॉडी, हम अपने आप को हील कर सकते हैं। आपको पता है वो हातिम जी जो अपने चैनल पे आए थे, जिन्होंने हेल्थ के बारे में शेयर किया था, उनकी Hmm. एसिडिटी की दवाई, कल उन्होंने वहां पे दूसरा एक मिरेकल शेयर किया है उनके नीज के बारे में। मैंने उनको बोला है कि आप हमारे चैनल पे फिर आके बताना, बिकॉज देन योर बिलीफ सिस्टम इंक्रीजेज। अगर कोई सामने से खुद से उनका शेयर करता है, जैसे धारा जी शेयर करती है उनका, तो जो ओल्ड प्रैक्टिशनर्स है ना, तो उनको समझ में आता है कि यस मिरेकल्स होते हैं, मैजिक्स होते हैं, बट आपकी कनेक्टिविटी, आपकी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस दारा जी, व्हाट रिक्वेस्ट? मैम ये सेशन वापस करते ही रहना। मैजिक बुक काम सबको आपके साथ ही करना है। मैजिक बहुत बुक मुझे अच्छी। मिरर बुक के लिए भी बहुत आ रहा है। अभी मैं मिरर बुक के लिए मैं डालूंगी कल मैसेज बना के।
उसके लिए मैजिक बुक इमीडिएटली आई एम स्टार्टिंग। आई टेल यू वन थिंग, मिराकल्स मेरी लाइफ में बहुत हो रहे हैं। आई एम ट्रैवलिंग अगेन टू आवर होली प्लेस Oh, oh, wow, Wow. wow. in the month of Lots of magic dust to you. Lots of March. magic dust to you. My tickets are already booked. Where you are going? Let's I'm go, going Ajay. to I'm going for Umrah. Umrah. Wow, wow, wow. Very Good, nice. good. My Very cousin, good. thank you, thank you. Mubarak, Mubarak. My cousin Mubarak, had yes. told in between, and we are going through her. ओके, एंजॉय करके आइए। बट मतलब स्टार्ट तो हम आपके साथ ही करेंगे। देखो, मंजू मैम के साथ बहुत मजा आ रहा है, प्रशांत सर जी के साथ, अकीला मैम के साथ, Right, तायरा मैम के right. साथ, ये सब लोग मतलब एक फैमिली की तरह Because लग रहे हैं अब। yes, see, I'll मतलब tell अब you हम बिछड़ना नहीं चाहते। why I say that, you know, कि you need to do this book again and again. I met yesterday, I met one more friend. You know, friend कहाँ से बनी? वो राजन सर को मिलने आए थे पुणे में, and she joined my landmark का when graduation day was there. एंड वो कल फिर से मिली, और फिर जब उसको पता चला कि मैं सेशन ले रही हूँ, अरे यार मारिया, मेरा भी बहुत छूट गया है यार, मेरी भी अभी प्रैक्टिसेस, मैं फिर से तेरे सेशन में आती हूँ। तो आई नो पीपल कम बैक अगेन, बिकॉज जब आप सेशन में रहते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिसेस ऐसी रहती है। हम क्यों बार बार करते हैं कि इसी के लिए, क्योंकि अब बिकॉज सी वेरी रेयर पीपल हैव दैट विल पावर कि मैं खुद से करूंगी। जैसे मैं अगर बैठ गई तो मैं 3 घंटे तक भी नहीं उठती, और ये मेरे बच्चों को भी मालूम है। और मेरे बच्चे चिढ़ते भी हैं, इरिटेट भी होते हैं कभी कभी। वहां पे मेरी बेटी भी इरिटेट हो रही थी समटाइम्स, यू नो, कि लाइक तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, यू आर ऑलवेज इन द सेशन, और यू आर राइटिंग समथिंग, कभी भी फोन भी करो तो मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। तो ऐसा होता है ना कि आई डोंट बॉदर, बिकॉज मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जब आप कोई अच्छा काम करते रहते हैं तो देर आर ऑब्स्टेकल्स विच आर गोइंग टू बी देयर। एंड हमको यहां से यहां तक, कल भी मैम ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया कि अगर मेरा गोल वहां पे है और मैं यहाँ पे हूं, तो मुझे यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम तो लगेगा ना। ये बात मैंने भी पहले एक बार आपको एग्जाम्पल दिया था कि मुझे ये डिस्टेंस क्रॉस करना है, तो उसमें ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, चैलेंजेस तो आएंगे, बट अगर मैं फेस ही नहीं करूँ उसको और मैं छोड़ दूं बीच में, और फिर मैं बोलूं मेरा ड्रीम ही पूरा नहीं हो रहा, मेरा ड्रीम ही पूरा नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। आपको कोई चीज चाहिए तो हम कोशिश तो करेंगे ना उसको। तो अगर आप कोशिश छोड़ दोगे तो वो होगी ही नहीं कंप्लीट, क्योंकि यू गिव अप। और जीत उसी की होती है ना जो हारते नहीं है। एंड आई माई सेल्फ से दैट आई एम अ वॉरियर। मैं तो लग गई तो लग गई, फिर मुझे, यानी तुम कितना भी इरिटेट कर लो, तुम मुझे कितना भी, अगर मेरे फोकस मेरा चीज में आ जाता है तो मैं बिल्कुल हटती नहीं हूँ उस चीज के पीछे। मैं जब तक वो चीज को, यानी कंप्लीट, अगर मैं कोई टेक्नोलॉजी वाइज भी कोई चीज के साथ में स्टक हो जाती हूँ ना, मैं गूगल यूट्यूब को हर टर्म डाल के जब तक वो चीज का मुझे सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, मैं बैठती नहीं हूँ। भले फिर उसमें मेरे 3 घंटे लग जाए कि 4 घंटे लग जाए, बट आई विल रिमूव द सोल्यूशन। मैं उस प्रॉब्लम को वहां पे छोड़ के बैठ नहीं जाती हूँ कि कोई आएगा, मेरा बेटा आएगा मुझे हेल्प करेगा, या मेरी बेटी आएगी तब मैं उसके पास से। आई आई रिमेम्बर फ्यू इयर्स बैक, मैंने मेरा लैपटॉप, मेरा जूना जब लैपटॉप था, ये मेरे बच्चों ने ही मुझे लेके दिया हुआ है, तो मेरा जब जूना लैपटॉप था, एक बार वो रेड लाइट उसके ऊपर की बंद नहीं हो रही थी, और मुझे इतना इशू हो रहा था उसकी वजह से, बहुत प्रॉब्लम। तो मैंने तो डायरेक्ट फेसबुक पे डाल दिया था कि आई एम हैविंग दिस इशू, डज एनीवन हैव एनी सोल्यूशन, प्लीज लेट मी नो। क्योंकि मुझे बैठना नहीं था वो प्रॉब्लम को लेके। जब आप प्रॉब्लम को लेके बैठे रहोगे ना, तो आप मानोगे नहीं, मेरी जूनी डायरेक्टर जहां पे इनोवेरा स्कूल की जो डायरेक्टर थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था, अच्छा बोलो मारिया मैम क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुमने तो डायरेक्ट फेसबुक पे डाल दिया। मैंने ऐसे लिखा था, आई हैव गॉट स्टक विद दिस प्रॉब्लम, कैन एनीवन हेल्प मी। क्योंकि मैंने सब मेथड्स यूज कर लिया था, कुछ नहीं हो रहा था। तो देन आई सेड एटलीस्ट लेट मी आस्क समवन। इसीलिए आपको यूनिवर्स को बुलाने की बात आ गई है। वो टाइम पे आपसे हो जाता है आपके हेल्प हो आपके जाती। काम करने के नहीं लिए। नहीं, इट इज नॉट आई ओनली, एवरीवन कैन डू इट धारा जी।
You can do it, Manju ma'am can do it, Akila can do it, Tahir can do it, Prashant ji can do it, Ramesh, everyone has that capacity. But हम हमारा लेवल ही नहीं समझते हैं, हम वो हमारी कैपेसिटी को समझ ही नहीं पाते। हमारा यानी देखने का नजरिया सिर्फ बाहर से होता है और अपने अंदर सब कुछ रहता है। क्योंकि जब मैं हार गई ना, कि मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, अब मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, अच्छा लेट्स पुट इट ऑन द वंस, ये NIBM का वंस एक फेसबुक है, लेट्स पुट इट ऑन दैट, कोई ना कोई तो रिप्लाई करेगा, किसी को तो आता रहेगा, मुझे सोल्यूशन तो मिल जाएगा। मुझे बैठना नहीं था वहां पे। तो वैसे करके फिर वो उन्होंने, मेरे डायरेक्टर ने कॉल किया, शी सेड अरे ये करो वो करो वो करो, और सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो ऐसे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व, बट आप अप्रोच ही नहीं करोगे, आप भगवान तक जाओगे नहीं, आप ऊपर वाले के पास मांगोगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं, तो वो कहाँ से सुनेगा। बट मैम हम आपके रेफरेंस से जाना चाहते हैं क्योंकि आपकी पहुंच बहुत धारा जी, ज्यादा हो गई। आपने कभी भी जाओ ना फ्लाइट में, तो थैंक यू जरूर बोलना। मुझे ऐसे लग रहा है मैं जो अभी ट्रैवलर ट्रैक कर रही हूँ ना, एक तो ये मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस, और ऊपर से मैं जितना थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने क्या लिख के भेजा, होप टू सी यू सून, वाह, होप टू सी यू सून। वो पहला वाला भी बताया था, बैंकॉक वाला उन्होंने भी दिया था ना, वैसा ही मैंने बोला था मैजिक क्यों है कि आई एम गोइंग टू फ्लाई बैक अगेन, आई फ्लू बैक अगेन टू अहमदाबाद नाउ, अब फिर से मैं जा रही हूँ। तो आई फील कि वो चक्कर फिर इमिडिएटली अपने आप चलता है। और मैम मैं मेरा भी एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। एक बार मैं बहुत बिलो द लाइन चली गई थी, तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, तो बोले धारा कुछ मत करो, जब आप बिलो द लाइन चले जाओ ना, वॉकिंग पे चले जाओ और कंटिन्यू हाँ, और सो जाओ, नहीं तो सो जाओ। जो चीज अच्छी लगती है ना, जब चीजें रियली आर नॉट वर्किंग ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, सो जाने का। मैं तो बोलती हूँ सिर्फ डायरेक्ट सो जाओ। जो चीज यानी, या तो आपको गाने सुनने अच्छे लगते हैं ना, आप पूरा दिन गाने सुनते रहो। अगर आपको कार्टून देखना अच्छा लगता है, आप कार्टून देखो। अगर आपको पिक्चर देखना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, आप वो देखो। आप जितना जो चीज आपको पसंद है ना, तो वो आपको लविंग यानी इमोशन, आपकी जो इमोशन अच्छी वाली फीलिंग में आपको रखेगी वो, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिफोर मैनिफेस्टिंग। जब आप अच्छी इमोशन में रहते हो, खुश की इमोशन में रहते हो ना, फिर आपकी चीजें बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती है। बट मैम मैंने बहुत पहले फ्लाइट में मुझे ये मिला था बैंकॉक में, अरे वाह, एयर होस्टेस ने वो दिया था। अरे वाह, बहुत अच्छा है ये भी। Thank you for flying with 6E, Miss Gudrawala. Hope to see you again. 6E 1051 crew, Bombay to Bangkok. बहुत प्यारा है। तो ये मेमोरीज भी कलेक्ट कर रही हूँ, यस, और कुछ भी नहीं करना होता, यू जस्ट से थैंक यू, राइट? यस। यू नॉट डूइंग एनीथिंग, यू जस्ट फीलिंग। बट जब आप दिल से करते हो ना, तो ही सामने वाले के दिल तक वो चीज पहुंचती है। ऐसा नहीं कि आपने रैंडमली, जस्ट बिकॉज अभी मारिया ने बोला या जस्ट बिकॉज मैजिक बुक ने बोला तो मैं भी करके, नहीं। आपको दिल से करना होता है वो चीज, दिल से फीलिंग। आई टुक दैट एफर्ट्स टू गो डाउन, गेट द पेपर नियर माई डॉटर्स हाउस ऑल्सो, स्टेशनरी के पास, बिकॉज शी डिडंट हैव एनी पेपर लाइक दैट। सो आई वेंट डाउन, आई गॉट द पेपर। मैं स्केच पेन्स लेके आई, मेरे पास वहां पे स्केच पेन्स नहीं थे, मैं वो लेके आई। एंड आई सैट, आई कट डाउन। आई थिंक मंजू मैम, मैंने आपको भेजा था शायद पिक ना, कार्ड्स गेटिंग रेडी। Yes, अपनी yes, कुछ yes. You had मैसेज पे sent. बात हुई थी, Yeah, तो आई सेड कि थैंक right. यू, कार्ड्स गेटिंग रेडी। Yes. तो दैट इज हाउ लाइक, मैं बहुत काम कर लेती हूँ साइमल्टेनियसली, देन ऐसा जो मेरे माइंड में रहता है ना, आई नेवर फॉरगेट दैट। क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आप जो प्रैक्टिसेस में रहते हो ना, दैट ओनली देन ओनली यू कैन प्रूव टू पीपल कि यस दैट प्रैक्टिसेस आई एम डूइंग। अगर मैं ही नहीं करूंगी तो कैसे चलेगा ना। तो मैं तो आई एम गोइंग डीप इनटू प्रैक्टिसेस। ऐसा कुछ नहीं है धारा मैम, ऑलराउंडर, इवन यू आर ऑलराउंडर, एवरीवन कैन बिकम ऑलराउंडर, एंड आई फील एवरीवन इज अराउंड ऑलराउंडर। बट हम हमारी कैपेसिटी, हमारी टैलेंट को पहचानते नहीं कि हमारे अंदर है क्या। दैट इज वाई दैट डे आई टोल्ड यू ना धारा जी, कि यू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, उसको और आगे बढ़ा, और जो अपने वीकनेसेस है उसको भी बढ़ा, पर उसके ऊपर भी वर्क करो। बट जो अपने स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस करके उसको आगे लेके जाओ, देन यू विल सी हाउ यू ग्रो। You have to understand your strength, what is there in me, right? So we'll wind up today. Chalo, thank you.
वर्क ऑन योर ड्रीम। आपने जो इंस्पायर्ड एक्शन आज लिखा है वो आपको रोज लेना है, रोज करना है। ओके, ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया जो सिर्फ लिख लिखने के लिया, लिए। हो गया। आप जितना हार्ट के साथ वो आप रख के, दैट इज वाई मैंने सोचा कि ये हार्ट वाला एक्टिविटी मुझे क्यों ध्यान में आया, कि जब आप इस तरीके से करोगे ना तो आप जब इधर रखते हो आपको फीलिंग आएगी, नहीं तो किसी किसी को नहीं आती है हार्ट पे हाथ रख के भी फीलिंग, तो आपकी कनेक्टिविटी फील होती है उससे। You know, Maria, whatever I did today, no, like I was already doing every day. Matlab, I am already into it. So I was feeling it more, you know, when you वेरी said गुड, to do it right now, no? वेरी So गुड। that is why the feelings came out more. Actually, it comes automatically, you know, with me, like to do it like that. वेरी गुड, वेरी गुड। So, yeah. Thank you so much. Thank you. Chalo, thank you. God bless you all, and may you require God give Thank you, you ma'am. all that you require. So thank you, thank you, Thank thank you, you. ma'am. Thank May all your thank you, dreams Maria. come true, and I hope you do your practices very well, and you reach to your dream. Take the first step and move ahead. God bless you all, and I know all your dreams are going to come true. Thank Thanks. you. Thank God you. bless Thank you, you. ma'am. Thank God you. bless you. Thank you. Thank you. God bless you, ma'am. Thank you, Ramesh ji. Thank you. Bye.